Continuing the discussion on connective tissue, soft category, and the last heading left out in discussion is specialized connective tissue. Now, as the name itself suggests, being an general connective tissue undergone some modification indeed to perform some vital physiologically significant activity for the body. So, accordingly, connective tissue, soft category have become some specialized pattern. The first category is pigmented. Now, there is nothing much to significantly mention regarding the theory of pigmented connective tissue. Indeed, the name itself suggests the basic arrangement. The matrix of that connective tissue might have got some presence of unique pigments by whose presence उन pigments के presence से जो color imparting nature आता है. Now that color imparting nature of that tissue will definitely going to perform some vital role for our body physiology. What is that? Let us go through a practical explanation. Suppose if I mention the example directly, the only example of pigmented connective tissue in the body is choroid layer. Is the choroid layer of human eyeball. Now this statement simply reveals कि suppose we consider the longitudinal section of the human eyeball by an arbitrary presentation of the lens where the internal enclosures of the eyeball, this is the eye wall, this thickness, and the enclosures include the lens के presence से internally the eyeball differentiate into vitreous chamber and aqueous chamber. Now the outermost layer of eyeball is called sclera. The innermost layer is called as retina. Now here comes the middle layer, which is being termed as choroid layer. And choroid layer is pigmented. It is made up of pigmented connective tissue. That means the matrix is pigmented. The special pigment present in the matrix of choroid layer made up of connective tissue is melanin pigment. And indeed, presence of melanin will impart black color to the choroid. हालांकि NCERT में आगे चल के आप देखेंगे mentioned है कि the choroid layer imparts bluish color. क्या impart करता है? NCERT में bluish color mentioned है, but practically it is having a black color where presence of that melanin pigment making that connective tissue to be pigmented connective tissue. और ऐसे connective tissue से जो choroid human eyeball के histology में in between sclera और retina जो पाया जाता है, thereby making it as to act as black box alike camera. जैसे कैमरा के अंदर ब्लैक बॉक्स रहता है, इंटरनल सरफेस बीइंग पेंटेड ब्लैक, सो एज टू what is the physiological role of such histological arrangement which is going to facilitate the act of vision. हमारा जो vision physiology है उसमें इस choroid layer का क्या role है? Now being a black box alike camera, it helps in absorbing the additional rays
जो लाइट बाहर से आके टकराते हैं रेटिना पे और सरपास कर जाते हैं रेटिना को, और रेटिना को सरपास करके फिर वो रिफ्लेक्ट ना हो, it helps in absorbing the additional rays to prevent internal reflections, internal reflections, और इससे क्या होगा, अवॉइड होगा इंटरफेरेंस। क्या अवॉइड होगा, विच इज गोइंग, विच में अगर ऐसा होता है, अगर कोरॉइड लेयर अपना काम को अंजाम ना दे, वो ब्लैक बॉडी की तरह सारे एक्सटर्नल एडिशनल रेस को एब्जॉर्व ना कर ले, तो वो टकरा के जब रिफ्लेक्ट होंगे तो जो इमेज बनने की सेंसेशंस रेटिना डेवलप करके इमेज ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में बनाते हैं, उसमें ब्लडनेस, रुकावट आएगा, इंटरफेरेंस होगा और धुंधला विजन या अनक्लियर्ड इमेज बनेगा। That's the blockage hurdle in the vision physiology. ऐसा ना हो, hence nature has played a dual role, being a connective tissue. Point to be noted, throughout histology of experience कर रहे हैं कि हर टिश्यू अपना बेसिक काम तो जहां रह के करता ही है, but apart from that, it also plays the role of, है ना, apart from that वो कुछ एडिशनल फंक्शन भी करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन का काम तो करेगा ही, और भी बहुत सारे रोल है कोरॉइड का, वो तो मैं आने वाले दिनों में जब हम ह्यूमन आई और उसकी पूरी हिस्टोलॉजी और डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे विद मैकेनिज्म, वहां सारी बातें रखेंगे। आज तो मैं सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाते हुए कोरॉइड का जो एक वन साइड ऑफ द कॉइन, सिक्के का जो एक पहलू सामने आया कि कोरॉइड पिगमेंटेड होने के चलते हुए ब्लैक बॉक्स जैसा है कैमरा के, और उसका ये फिजियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन रहता है व्हाइल वी परफॉर्म दैट एक्ट ऑफ विजन। किसी को कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। और बाकी रेटिना और स्क्लेरा को जोड़े भी रखता है, कनेक्शन तो कर ही रहा है। अच्छा, इसी एक ही डायग्राम में क्यों ना हम थोड़ा सा अपने प्रीवियस टॉपिक्स और कुछ चीजों को रिवाइज कर लें। स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ वाइट डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बाकी कोरॉइड अभी अभी आपको पता चला है पिगमेंटेड कनेक्टिव। वैसे ही रेटिना 4 लेयर्स के होते हैं, हमें अभी फिलहाल 2 लेयर से मतलब है, फ्रॉम आउटर टू इनर। वन इज, एंड बोथ आर एपिथेलियम, वन इज पिगमेंटेड एपिथेलियम, अनदर इज न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम, और उसको लेयर को कहते हैं सेंसरी लेयर, मेड अप ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स। एंड नियर फ्यूचर, आज इसके अगला ही जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये हो गया पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। अब अगला ही जो मैं बताने जा रहा हूं उसका एक एग्जांपल भी ह्यूमन आई के अंदर है, एंड दैट इज नन अनदर देन दिस चैम्बर। दिस एरिया इज फिल्ड बाय एन एम्ब्रियोनिक टिश्यू, जेली लाइक, बिल्कुल चिपचिपा जेली जैसा होता है। द चैम्बर एरिया इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर एंड इट होल्ड्स वन ऑफ द टिश्यू कॉल्ड mucoid tissue, mucoid connective tissue. So within the eye you could see the perspective of different other types of epithelium and connective tissue एक ही जगह पे है ना। packing, sclera, protective dense covering, followed by pigmented connective tissue, followed by retina, the actual functional layer which makes the eye to act as a sense organ। और उसके लिए भी वो फिर खुद कैसे वन आफ्टर द अदर 4 फंक्शनल लेयर्स के बने, और उनमें से 2 तो एपिथेलियम निकले, दोनों के दोनों ही मॉडिफाइड, एक पिगमेंटेड और एक न्यूरोसेंसरी। सून देयर आफ्टर द स्पेस लेफ्ट, जिससे आई बॉल का शेप बना रहता है, उसका जो एक टेक्सचर है पूरा वो बना रहता है, एंड दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्पंजी मटेरियल जेली लाइक कॉल्ड म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। वेराज इस एंटीरियर पार्ट में तो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, यहां जेल होता है और यहां पर फ्लूइड, उस फ्लूइड को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो इन दोनों के रोल्स क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन आने वाले दिनों में करेंगे कि ये विजन में इसका क्या रोल है, इसका विजन में क्या रोल है। फिलहाल आज आपको पता चल गया कि विट्रस ह्यूमर उस जेली लाइक मटेरियल को कहते हैं vitreous humor, and it is made up of mucoid connective tissue. Now the next,
Next, specialized epithelium. Sorry, connective tissue is mucoid connective tissue. It's an embryonic tissue. Again, क्योंकि आगे चल के पता चलेगा विट्रस ह्यूमर वंस इट इज बीइंग फॉर्म्ड इट कांट बी रिप्लेस्ड. तो बचपन से बिफोर द बर्थ एक बार आंखें डेवलप होके अंदर ये बन जाता है, उसके बाद ये दोबारा कभी नहीं बन सकता. द रीजन इज फिब्रोब्लास्ट डिसअपियर, यानी था लेकिन अपना काम करके वो डिसअपियर गायब हो जाता है. फिब्रोब्लास्ट डिसअपियर. Only fibers present. Only fibers present. Matrix is called Wharton's jelly. Now that's the only question which actually comes in PMT from the histology point कि किस कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स को वॉर्टन्स जेली प्रोमिनेंटली पॉपुलरली कहा गया है. आंसर है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, जेली लाइक. So the examples are, one of the example you have experienced in the explanation, but at a stretch ये तीन ही examples इन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन. पहला एग्जाम्पल जो आपने अभी अभी डायग्राम में एक्सपीरियंस किया, दैट इज विट्रस ह्यूमर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉक्स कोम्ब, एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इज अम्बिलिकल कॉर्ड. तो कॉक्स में जो उनके मुर्गे की कलगी हिंदी में जो कहते हैं, दे आर कंटेनिंग दोज विट्रस सॉरी mucoid connective tissue, and the lifeline attachment, a cord which hold down the arteries, veins between the maternal and fetal tissue. fetus, developing fetus और मदर के टिश्यू के बीच एक इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट बनाता हुआ लाइफलाइन जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उसके अंदर भी म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. तो आने वाले दिनों में रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम प्लेसेंटा के डायग्राम के साथ एक्सपीरियंस करेंगे. सो दीज आर दोज टू रिस्पेक्टिव successive specialized connective tissue. The third is एनसीईआरटी. अगर आप पढ़ क्या है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि इन जनरल जनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कॉमनली अबंडेंट पाया तो जाता ही है, बट उसके अलावा अपने वर्सटाइल और वेरियस अदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करते हुए कनेक्टिव टिश्यू इन फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड एंड एडिपोज, है ना, कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज. तो द नेक्स्ट specialized connective tissue we are going to experience is adipose connective tissue. First of all, they are modified loose connective tissue. Only एडिपोसाइट्स प्रेजेंट. सिर्फ एक ही तरह के सेल होते हैं, मदर सेल फिब्रोब्लास्ट भी नहीं होता. अब वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, है ना. The only cell type it has the among the other cell types is only adipocytes. The cells store fat droplets in cytoplasm. जो सेल्स की क्या एबिलिटी है कि वो फैट को जो लिपिड है उसको फैट ड्रॉपलेट्स की तरह साइटोप्लाज्म में स्टोर करते हैं, है ना. तो रिजल्टेंट जो सेल होगा
द न्यूक्लियस इज ओवल एंड मार्जिनल. न्यूक्लियस एक तरफ धकेल के जो है पुश होके कोने में आ जाता है, मार्जिनल. एंड दिस इज द फैट ड्रॉपलेट. तो ऐसे ये और एक सेल होगा, ये और एक सेल होगा, ये और एक सेल है. Still you could see cells are not tightly attached. So this is the only connective tissue where you could see, मैं अलग से रेड पेन से लाइन लिखने जा रहा हूं आखिरी पॉइंट कि the cells are very closely arranged. मैंने अटैच नहीं लिखा है, अरेंज्ड. बहुत नजदीक से अरेंज होते हैं, बट स्टिल इट हैज गॉट द इंटरसेलुलर स्पेस एंड दैट स्पेस इज फिल्ड बाय मैट्रिक्स. तो सिर्फ मैट्रिक्स और सेल्स होते हैं, फाइबर्स भी नहीं होता और मदर सेल भी नहीं होता. एंड द ओनली सेल इज द फैट स्टोरिंग सेल्स कॉल्ड एडिपोज सेल्स, फैट सेल्स. And by such arrangement, point to be noted, these tissue are present for two functions. मतलब बॉडी में दो तरह के काम करता है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल. फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल. फिजिकल ये एज प्रोटेक्टिव लेयर है ना, कुशन लेयर, एक कुशन इफेक्ट, गद्दे जैसा इफेक्ट लाने के लिए, है ना, टू प्रोटेक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड विसरल ऑर्गन्स. एक इनका ये रोल होता है. दूसरा एज हाइपोडर्मिस below the skin to act as, उसमें भी दो काम करता है, फूड रिजर्वायर और इंसुलेटर. ये दोनों उसका फिजियोलॉजिकल रोल है. और प्रोटेक्शन देना, कुशन इफेक्ट, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनको कहीं भी अंदर एकोमोडेशन मिले, आसपास के ऑर्गन्स से लगातार उनको किसी कारण से टकराना पड़ जाए, या बॉडी जब ऑल ओवर मूव करता है तो ऑल ओवर जो एक जर्क बॉडी हमेशा महसूस करता है, वो उन ऑर्गन्स के इंटरनल लेयर्स तक ना पहुंचे, वो बाहर ये लेयर्स, कुशन लेयर मेड अप ऑफ एडिपोज फैटी लेयर, वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, बियर टॉलरेट कर लेता है. So that's the role of adipose connective tissue histologically to become a part of any organ of the body, और एक complex animal body को organize करने में ये अपना role play करता है. So that's how I could say and declare that we have completed the first part of that versatile tissue type connective tissue in animal kingdom. We have to deal with the three types. इसमें से आज हमने second type complete, first type जो complete किया, that is soft connective tissue under 9 subtypes, broadly divided into loose, dense, specialized connective tissue. खुद एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू सिंपलेस्ट एक ही टाइप का होता है, हालांकि सबसे अबंडेंट, मोस्ट कॉमनली हर जगह पाया जाता है. नेक्स्ट इन सीक्वेंस इज डेंस. डेंसिटी ऑफ व्हाट? फाइबर्स. फाइबर्स तीन तरह के होते हैं. ऐसे फाइबर, ऐसे डेंस फाइबर्स भी तीन तरह के होते हैं, व्हाइट फाइबरस, येलो इलास्टिक एंड रेटिकुलर. लास्ट क्लास हमने यहाँ तक देखा था और उसके भी सब टाइप्स जो भी थे एग्जांपल्स के साथ हमने एक्सपीरियंस किया. और आज लास्ट कैटेगरी स्पेशलाइज्ड जो हमने कवर किया, उसमें आपने फॉलो अप किया कि अगेन दे आर टू उतनी ही सिग्निफिकेंट है. भले ही बॉडी के बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में ये पाए जाते हैं, बट स्टिल दे प्ले सम वाइटल रोल फॉर द बॉडी. तो एग्जाम्पल वाइज आपको बस याद रखना है विद देयर कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट्स. सो बिफोर आई मूड यहाँ पर से आगे जो है एक्सेल करें, मूव करें हम लोग, मैं जानना चाहूंगा सब लोग एनसीईआरटी थॉरोली एक बार घर पे जाके रीड आउट किया, स्पेशली जो करंट टॉपिक जो चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू.
Just pass me a booklet, one of the book of NCERT. Now, I will like just go through the some significant statements of NCERT to justify my explanation. Page number 102. नाउ सिंपली इट सीम्स टू बी कि एक स्टेटमेंट्स लिखे हैं शॉर्टली, बहुत ही प्रिसाइसली पैराग्राफ में मेन बातें मेंशन कर दी गई. नाउ बेसिकली आई वांट टू मेक यू ट्रेंड हाउ टू फॉलो एनसीईआरटी. मतलब आफ्टर दैट थॉरो एक्सप्लेनेशन इन द क्लासरूम, आप घर जाते हैं आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, है ना, थोड़ा सा आराम फरमाने के बाद आप जैसे ही बुक उठाते हैं और बायोलॉजी को समय देते हैं, अपना बहुमूल्य समय, ठीक है ना. और मैं तो हमेशा कहता हूं कि गिव सम टाइम टू द जूलॉजी फ्रॉम योर लीजियर टाइम्स. जो आपकी फुर्सत के जब पल निकले आपके जीवन के, उसमें थोड़ा सा आप जूलॉजी को समय दीजिए. ठीक है, तो देखते हैं कैसे. हेडिंग दिया है कनेक्टिव टिश्यू, एंड द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जिसको मैंने साबित करने के लिए एक कहानी रखा आपके सामने, इट्स लाइक अ स्टोरी. यस, इट इज द मोस्ट अबंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू टाइप इन द बॉडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनिमल. ऑफ अ, अब एनसीईआरटी ने डायरेक्टली कॉर्डेटा नहीं बोला, क्या बोला? कॉम्प्लेक्स एनिमल. और एनिमल आर कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली टू अदर किंगडम मेंबर्स अगर लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि मल्टी सेलुलैरिटी स्टार्ट हो चुका है. बट इज इट ट्रू कि ऑल एनिमल्स आर कॉम्प्लेक्स? नो. द फर्स्ट 10 फाइलम्स आउट ऑफ द 11 जो हमें डील करना है टेक्सोनॉमी में, राइट फ्रॉम पॉरीफेरा टिल हेमिकॉर्डेट्स, all are very primitive, localized, confined to a very specific habitat. सबकी तो marine aquatic conditions है, वो तो सिर्फ बीच में से आर्थ्रोपोडा और एनालिडा और थोड़ा बहुत मोलस्का मेंबर्स जो है टेरेस्ट्रियल फॉर्म हो गए. क्या हो गए? राकी. रेस्ट तो all are aquatic and that too specially mostly marine. हर पैराग्राफ में यही तो लिखा हुआ है. और marine conditions are very very stressful, है ना, नॉट कंड्यूसिव एंड फेवरेबल टू दी. आए दिन कंडीशंस चेंज होते हैं एंड दे नीड मच मोर सर्वाइवल वैल्यूज, इसलिए उनमें रीजनरेशन पावर ज्यादा होता है, क्योंकि आए दिन उनके आसपास ऐसी कोई भी घटना हो सकती है कि कोई भी सच एनिमल मेंबर्स दे कैन कोलैप्स, तो वो अपने आप को रीजनरेट करके जल्दी से डेवलप होने की कोशिश करते हैं. रेस्ट उनके अंदर ज्यादा कुछ प्रोमिनेंट सिस्टम्स वगैरह डेवलप नहीं होते हैं. एक्चुअल सारे सिस्टम्स आपको पूरे एनिमल किंगडम में थ्रू आउट ऑन अर्थ, आप दुनिया के किसी भी बायोजोग्राफिकल एरिया में चले जाते हैं और उसमें किसी भी इकोसिस्टम में जाके, किसी भी फूड चेन में जाके आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज्यादा दबदबा, डोमिनेंस मिलेगा किसी ना किसी कॉर्डेट का. किसका? इन 6 डिफरेंट फॉर्म्स. उसमें से भी एक है साइक्लोस्टोम. उसको छोड़ दिया जाए तो मछली से लेकर, पीसीस से लेकर मैमल्स तक कॉस्मोपॉलिटन. कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वर्ल्ड वाइड, हर जगह. फिर घुमा फिरा के वही बात आ गई कि अब ऐसे कॉस्मोपॉलिटन एनिमल्स जो दुनिया के हर जगह पाए जाएंगे, इसका मतलब है उनका शरीर अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट और उनके चेंजेस का सामना करेगा. एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, टेम्परेट, ट्रॉपिक, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड वाइज. यही तो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में, इस रिलेशनशिप को. और फिर किन किन नियमों के चलते हुए किस ऑर्गेनिज्म को किस तरह के हैबिटेट में हवा, पानी और मिट्टी का सामना करना पड़ता है. लैंड, वाटर, सॉइल. अरे यस और नो, यही है ना डिस्ट्रीब्यूशन. आने वाले दिनों में इकोलॉजी में ये पढ़ोगे आप. तो आज ही से इस बात को समझा जाए. मैं बार बार चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम ही क्यों रखा गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल. एक एनिमल जो कि ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, उसको इस गिवन अर्थ जो कि लाइफ को रिप्रेजेंट करता हुआ बायोस्फीयर है, उसका हिस्सा बन के रहना है. और हिस्सा बन के रहने के लिए उसको एक बॉडी फॉर्म चाहिए, है ना, रूप, काया कहते हैं ना. तो उसका शरीर बनाया कैसे जाए, शरीर को बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल हो. अगर वो एनिमल है तो सबसे पहले मल्टी सेलुलर हो और उसकी शरीर की शुरुआत टिश्यू लेवल से हो. किससे हो? ये नियम है, दिस इज द रूल. हालांकि इस रूल को पहले ही चैलेंज करता हुआ पहला मेंबर पॉरीफेरा, सेसाइल, इमोटाइल, सिडेंट्री मेंबर्स. उनका शरीर कैसा रह जाता है? सेलुलर. बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल बट टिश्यू नॉट प्रेजेंट. यहां से हमारा चैप्टर चालू हुआ था. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल कौन? कॉर्डेट्स. और कॉर्डेट्स
एक अच्छे से अच्छे बेहतर एनवायरनमेंट हो या बुरे से बुरे एडवर्स एनवायरनमेंट हो, उसका सामना सिस्टम से करता है, क्योंकि उसके अंदर सबसे बेस्ट फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जा सकता है। और इफ इट इज ट्रू, तो वो कैसे संभव है? बाय प्रेजेंस ऑफ एन सीरीज ऑफ सिस्टम। याद आता है पहले दिन मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था, एन ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड अप ऑफ एन नंबर। अब वो एन नंबर कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 2 ऑर्गन से एक सिस्टम बनेगा और मैक्सिमम 12-13 से बन जाए। बोले सर 12-13 ऑर्गन? अरे बॉडी में तो 639 ऑर्गन से मस्कुलर सिस्टम कितना बना, कौन बना हुआ है? 639 ऑर्गन से क्या बना है हमारा? 206 ऑर्गन से क्या बना है? स्केलेटन सिस्टम, क्योंकि ईच बोन इज एन ऑर्गन। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पढ़ना तो हमें हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, क्या पढ़ना है, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं कि कैसे मैं इस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते आई विल लीप टू दी, पहले आज यही जस्टिफाई कर लूं, हाउ आई एम गोइंग टू लीप टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, चैप्टर 20 मूवमेंट एंड लोकोमोशन। और उस चैप्टर के 2 एस्पेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि जिसे हम मूवमेंट कहते हैं, है ना, अ फिजिकल मोशन परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग बॉडी बाय इनहेरेंट फोर्स एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको एग्जिबिट उसको करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। देयर आर 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म मूवमेंट। एक आम आदमी से पूछोगे तो उसको तो आंखों दिखा एक ही चीज कहेगा कि फोर्स चाहिए मूवमेंट के लिए, बस बात खत्म। बट strictly talking on the some basic rules of biology, movement is brought about by a trio action। कैसा एक्शन? व्हाट इज दैट ट्रायो? कौन है वो तिकड़म जो हमारे शरीर के अंदर आपस में मिलके अंदर से इनहेरेंटली हमें तैयार करते हैं? एंड दोस 3 सिस्टम्स आर मस्कुलर, स्केलेटन एंड नर्वस। क्योंकि मस्कुलर सिस्टम गिव्स द बेसिक रिक्वायरमेंट फोर्स, फोर्स से मूवमेंट तो जनरेट होगा, बट मूवमेंट को तभी हम सही मायने में मूवमेंट मानेंगे एक लिविंग बॉडी के लिए जब वो मीनिंगफुल हो। कैसा हो? ये हेड हिला सकते तो दिन भर हेड हिल रहा है ऐसा ऐसा, है ना, शरीर ऐसे ऐसे हिल रहा है, हंटिंगटन स्कोर या डांसिंग सिंड्रोम। नो, द मूवमेंट इज शोन बाय अ लिविंग बॉडी मीनिंगफुल विथ सम एम, एंड इट इज ओनली अचीव्ड बाय डायरेक्शन, बाय, और डायरेक्शन देने के लिए मसल्स कह रहा है मैं फोर्स तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से जनरेट कर दूंगा, लेकिन आई माई सेल्फ नीड सम सपोर्ट, आई माई सेल्फ नीड सम सपोर्ट। फ्रॉम वेयर दैट सपोर्ट इज गोइंग टू एक्चुअली अपीयर? कहां से आएगा वो? बाय सम हार्ड सरफेस, सम स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग बॉडी विच शुड एश्योर, पहले वो एश्योर कर दे कि तुम खुद अपने आप को मजबूत कर लो पहले, क्योंकि तुम्हारे से हम सपोर्ट लेंगे और तुम खुद ही पता चला हवा में लहरा गए। अरे कुछ आया समझ में? कंसेप्ट समझो आप। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम। हम किसकी बात करेंगे? एंड दैट इज गिवन बाय अ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम थ्रू आउट एनिमल किंगडम सब में होता है मोर और लेस, लेकिन हमें जो स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है वो ट्रू लिविंग टाइप होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा का फीचर है। किसका फीचर है? सारे नॉन कॉर्डेट्स में स्केलेटन मौजूद है, एंडो हो एक्सो हो, बट दे आर ऑल इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग टाइप, इनऑर्गेनिक। जबकि हम कॉर्डेट्स में जिस स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे वो होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन एज वेल एज लिविंग टाइप, एज वेल एज लिविंग। मतलब ऐसा थोड़ी कि हड्डी बाहर निकल के चलना कूद रहा है लिविंग, लिविंग मतलब क्या? एनी स्ट्रक्चर in a body is called living. What does it mean? What does it suggest? कि until and unless it is a part of a living body executing life, वो उसका हिस्सा रहकर उसको किसी तरह का भी चेंज डैमेज हुआ तो वो अपने आप को रिकंसाइल करेगा, दोबारा रीजनरेट रिपेयर कर सकता है, और इसके लिए मेंटेनेंस चाहिए। और वो मेंटेनेंस आता है ब्लड सप्लाई से, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन से। तो बॉडी का वो हर ऑर्गन जो अपने आप को रेजुविनेट कर सके, मेंटेन कर सके, वही कहलाता है लिविंग पार्ट। तो कार्टिलेज एंड बोन्स कैन रेजुविनेट देमसेल्फ, और जब ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स मिलके शरीर का क्या बनाते हैं? सिस्टम। कौन सा सिस्टम? हार्ड फ्रेमवर्क, हार्ड बायोलॉजिकली कॉल्ड, एक्चुअली वो ढांचा है हमारा जिससे शरीर को एक शेप, साइज, सिमेट्री, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो तो सब एलाइड, मैंने कहा ना, सीरीज फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम।
फिर से वही बात है, एक क्लास 9th के बच्चे से पूछेंगे एट अ ग्लांस, एक जनरल एवरेज स्टूडेंट होगा, तुरंत कहेगा हाँ मतलब इतना अकल है, पढ़ रखा है, बेसिक नॉलेज। या एक आम आदमी से पूछ ले, वो भी कहेगा हाँ सपोर्ट दे रहा है ढांचा, इतना ही बोल पाएगा। लेकिन इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, इट हेल्प्स इन पार्चुरेशन। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बोले पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ, स्केलेटन सिस्टम। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो ये है, नाउ दिस इज, यू आर डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट, ब्रीदिंग मूवमेंट, पार्चुरेशन, ब्लड प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन? हीमोपोएसिस, है ना, बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करना, इरेक्ट पोस्चर मेंटेन करना। देयर आर मेनी सच लिस्ट ऑफ फंक्शन स्केलेटन सिस्टम परफॉर्म। लेकिन उनको आने वाले दिनों में एक्सपीरियंस करने के लिए द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज एवरी टाइम विद एवरी टॉपिक इन दी कोर्स, व्हाट इज दैट सिस्टम, हाउ इट इज मेड अप ऑफ, और उसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है वो खुद क्या है, वो खुद क्या उनके प्रॉपर्टीज है, उनका क्या डायमेंशंस है। आ रहा है सबको समझ में? दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन। तो एनी हाउ, मैं एक बार रीडिंग इसलिए कर रहा हूं कि एक बार जस्टिफाई कर दूं कि आज हम कार्टिलेज बोन्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली किस तरह से कनेक्टिव टिश्यू से इवॉल्व हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू ने ही क्यों जिम्मेदारी ली है, व्हाई नॉट अनदर टिश्यू कुड परफॉर्म इट, ऐसा क्यों क्या हो गया हो। ये है रीजनिंग, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। तो लेट अस कंटिन्यू। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल, वही मेन, हर टिश्यू का एक बेसिक नामकरण जो होता है, नॉमेनक्लेचर, उसके बेसिक फंक्शन है। मैंने आपको बार बार पैकिंग, अटैचिंग, फिलिंग टिश्यू कहा, एक ही बात है, एक शब्द लिंक, क्या होना, लिंकिंग करना। और इसके अलावा तो मैंने लिखवाया तो था सपोर्टिंग टिश्यू, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। सबको आ रहा है समझ में? तो जो लिटरेचर में जैसा लिखवा दे रहा हूं बस दैट्स द अल्टीमेट, वैसे के वैसे याद रखिए, एनफ, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन यू नीड सम प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी मैं अब से भी 15 दिन बाद में एक फ्लो पे आ जाऊं, आपको अभी प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगा और उसके अलावा प्रैक्टिस शीट भी मिलेगा। लेकिन उसके पहले जरा सब्जेक्ट जरा मजबूत कर लो, पहले खुद को कॉन्फिडेंट कर लो कि पढ़ा कैसे जाता है सब्जेक्ट को, क्योंकि वंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फिर तो वो आगे की बात शुरू हो जाएगी, फिर पीछे नहीं आना है फिर। तो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यही करना, एंड दे हैव अ रेंज ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म, वर्सटाइल, फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड। सॉफ्ट कैटेगरी तो खत्म हो चुका है, आज हम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, जो इतने स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। बोले सर स्पेशलाइज अभी अभी पढ़ा तो था, अरे ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की स्पेशलाइजेशन है। लेकिन अब जो दो टिश्यूज रह गए, लिक्विड और हार्ड, सी, which include cartilage, bone, adipose and blood. And in all, सारे कनेक्टिव टिश्यू में एक बात कॉमन है, एक्सेप्ट ब्लड। किसको छोड़कर? व्हाट इज दैट? कि उनमें सेल्स भी होंगे, ब्लड में सेल्स नहीं, कॉर्पसल्स होते हैं। बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होते हैं, ब्लड में प्लाज्मा होता है। बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होंगे, कुछ नहीं होंगे, सारे होंगे। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड इज फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कनेक्टिव टिश्यू? अरे बन गया ना क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। अरे आया कि नहीं आया समझ में? अरे मैं रोज रोज हर टॉपिक में ऐसा रीडिंग नहीं करूंगा, अब आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए। मैं तो अपना काम कर चुका हूं, घर पे जाके आप अपने फुर्सत के पलों में, अब आया समझ में, यही करना है आपको कि ये पढ़ पढ़ के एक एक सेंटेंस को एलुसिडेट करो, रिकंसाइल करो कि क्लास में हमने कैसे पढ़ा, उन बातों को कैसे कनेक्ट किया, कैसे ब्लेंड किया, और एक्चुअल क्या बात निकल के आ रहा है। एंड दैट्स द इंटेलिजेंस, यही मेहनत है ना। और एक बार ही होता है, रोज रोज फिर रिवीजन के नाम पे रोज रोज थोड़ी ये चीजों को आप चेकआउट करते रहोगे। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। तो सेल्स, ठीक है, सेल्स तो 6 तरह के होते हैं, यहां तो 3 तरह के मेंशन्ड है, डायग्राम में 4 तरह के बने हुए हैं। 6 तरह के सेल्स होते हैं, 6 में से कौन है मदर सेल? तो यहां लिखा थोड़ी है, अब डायरेक्टली लिख दिया सिक्रीट फाइबर्स, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, वही कोलाजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, रेटिकुलिन, यहां सिर्फ 2 लिखे हुए हैं। अब ये आपको जज करना आना चाहिए कि कितना एनसीईआरटी कवर हुआ और बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके हमने क्या पढ़ा। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, मैं कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं, ये है पीएमटी। नाउ दिस इज वेलकम टू प्रिपरेशन ऑफ पीएमटी। अरे आ रहा है समझ में? उसके बाद भी ये तुच्छ ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? तुच्छ ज्ञान, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, सब मजाक चल रहा है। नाउ फाइनली these fibers provide strength, elasticity, flexibility.
जबकि अब टेक्निकल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड यही टर्म्स ऑप्शंस में ऐसे लिखे रहेंगे। एपिथेलियम टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? कवरिंग, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, रिप्रोडक्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन। उनका नेचर है किसका? एपिथेलियम का। क्योंकि कहीं भी इस चीज को परफॉर्म करने के लिए पहले एक लेयर रहना चाहिए। लेयर बना के लाइनिंग का काम किसकी जिम्मेदारी है? एपिथेलियम। और इसका तो बेसिक फंक्शन है लिंक करना, चीजों को जोड़ना, है ना, हेंस द नेम कनेक्टिव गिवन। तो दीज सेल्स आल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड, ठीक है, वही सेल्स मैट्रिक्स भी बनाते हैं। तो उस बात को कैसे लिख दिया? मॉडिफाइड। अब वो मॉडिफाइड कैसे है? यहां तो सिर्फ पॉलीसेक्राइड लिखा है, वो है म्यूकोपॉलीसेक्राइड, hyaluronic acid and glycoprotein which act as ground substance matrix. फाइनली मुद्दे पे आ गए। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। और फिर आप देख सकते हो बोल्ड लेटर्स में लूज, एडिपोज, डेंस, रेगुलर, इरेगुलर, उसके एग्जांपल कौन कहां मौजूद है, वही सारे पॉइंट्स मैं तो आपको सब लिखवा चुका हूं। और बगल से ये दो डायग्राम, ये चार डायग्राम है। अब देखिए एनसीईआरटी में 103 टॉप कॉर्नर एडिपोज टिश्यू बी जो प्रेजेंटेशन बनाया मैंने उसको कैसे बनाया, और वो बुकलेट में वैसा दिया हुआ है। चीज तो एक ही बनाया गया ना, वो बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट, बाकी न्यूक्लियस मार्जिनल धक्का खा के एक कोने में। अरे आया समझ में? वो समझने वाली बात थी उसमें। तो फाइनली टुडे आई एम नाउ बिगिनिंग विद द न्यू टिश्यू कैटेगरी अंडर कनेक्टिव, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। और इसी पेज 103 में आखिरी से देखिए जो सेंटेंस जहां लिखा है दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन, मतलब वो खत्म हुआ, फिर लिखा है कार्टिलेज। क्या लिखा है? सीधा सीधा कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। और फिर एनसीईआरटी ने अपने नेचर के चलते हुए जरा सा मतलब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब गंगा जल छीट दिया इस पे कि ऐसा ऐसा पढ़ लो आप लोग। अरे आ रहा है कि समझ में, है ना, मतलब क्या बदतमीजी है देखो, लेकिन ठीक है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू इन द नियर फ्यूचर आई एम गोइंग टू प्रूव कि क्या क्यों ऐसा लिखा हुआ है कार्टिलेज कंप्रेशन। कार्टिलेज एक ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जिसकी आदतन उसको बनाया ही ऐसा गया है कि वो जहां कहीं भी मौजूद हो वहां रह के शरीर के उस हिस्से में अक्सर उसको किसी ना किसी तरह के दबाव को झेलना पड़ता है। इट हैज टू बियर, टॉलरेट सम और आइदर कंप्रेशन थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द लाइफ इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी, एंड दैट एबिलिटी इज कॉल्ड रेजिलियंस। इसी को क्या कहते हैं, है ना, रेजिस्ट कर जाना किसी तरह के दबाव को दिन भर। एंड एट द एंड ऑफ द डे दोबारा वो कार्टिलेज रिगेन करता है अपने, यानी स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को दबा छोड़ दोगे तो वापस आ जाता है ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजिलियंस। क्या कहते हैं इसको? रेजिलियंस। और इसीलिए उसका इस्तेमाल शरीर के ऐसे जगह पे किया जाता है जहां कोई भी दो सरफेस आके एक दूसरे से टकराने की कोशिश करे लेकिन टकरा ना पाए, बीच में वो आके एक गद्दे जैसा कुशन इफेक्ट लाता है, देयर बाय मेकिंग दैट मूवमेंट एक्टिविटी वॉट एवर सो, है ना, फ्रिक्शनलेस। कैसे बनाना? एंड अवॉइड वियर एंड टियर, एंड अवॉइड। तो इन बातों को ही साबित करेंगे हम। सबको आ गया समझ में हम किस कॉन्टेक्स्ट में? लेकिन बिफोर आई एक्चुअली बिगिन रिगार्डिंग कार्टिलेज एंड बोन्स, आज मैं एक्चुअली सिनॉप्सिस जिस तरह से लिखूंगा आप देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू हो चुका है। चैप्टर हमारा पहला रहेगा स्केलेटल सिस्टम। कौन सा चैप्टर? which is a part of that trio to bring meaningful movement to an organism body by offering support, by offering. Now let us experience that. Pass this book. So now
So class, please, I am still not ended with the lecture, है ना. To try to avoid such gossipings, है ना. आपस में जो है ज्ञान का आदान प्रदान ना करें. So, in context of understanding and learning the tissue type, soon we have moved on with a new topic, with a new context and our motive. And as I have given the term, हालांकि हम unit structural organization पे थे और अगले यूनिट को मैंने बीच में ब्लेंड किया है यहाँ पर, ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन, वेयर वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द one half of the chapter better given the term topic, that is skeletal system, right? Skeletal system. Now, as you always aware of that, to begin the topic we go through a synopsis. Today I am going to start up with an introductory explanation on the topic by the introduction, and finally would like to conclude by a definition of what is movement. Soon thereafter we will mention regarding its importance, and finally will conclude regarding skeletal system. Which is structurally and its morphological anatomical setup include two prime components, cartilages and bones. But the next question arises कि ये सब जो भी aspect हमारे सामने आएगा, we will go into the history of that skeletal system कि how hard connective tissue in animal kingdom originated. क्योंकि यहाँ जिस तरह से एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखवाते हुए इनका नाम आएगा, एंड दे आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, बट ये आए कैसे, दैट्स द बेसिक क्वेश्चन. यानी मैं हर चैप्टर टॉपिक में टेक्सोनॉमिक टच देते हुए कोशिश करूंगा कि 60% टेक्सोनॉमी के कंसेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अलोंग दी चैप्टर्स याद हो जाए, कि जिस दिन हम टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हो, हर फाइलम की प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए आप खुद मेंटली अश्योर हो सके कि ये बात तो आपको पहले से पता था कि ये सिस्टम, ये फिक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनली एनिमल किंगडम में कब कैसे एग्जिस्टेंस में आया और कैसे वो कंडक्ट हुआ. जैसे आज आप सभी एक बेसिक बात जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल टिश्यू, the first basis of classification, level of organization. There are 5 level of organization in animal kingdom: protoplasmic, tissue level, है ना, प्रोटोप्लाज्मिक, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. तो कहीं ना कहीं अब आप खुद ही रिकॉग्नाइज तो करो कि जिस दिन वो चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है, वी विल डील इट, बट आज ही आपको एक तरह से समझ में आ गया कि हमें एट अ स्ट्रेच 12 फाइलम्स पढ़ने हैं. प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एग्जिबिट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? प्रोटोप्लाज्मिक, नो डिविजन ऑफ लिवर, ऑल फंक्शंस फिजियोलॉजिकली परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल ओनली, हेंस नो टिश्यू प्रेजेंट. जर्म लेयर की बात नहीं है, सेल ही एक है शरीर बना हुआ. नेक्स्ट लेवल इज पॉरीफेरा, पैराजोआ कंडीशन. बॉडी इज मल्टीसेलुलर, जर्म लेयर एब्सेंट, टिश्यू एब्सेंट, बट बॉडी एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सम बेटर फॉर्म, बट स्टिल वेरी लिटिल फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेवर. हर काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स है बॉडी में, टिश्यू नहीं है. तो फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहां से चालू हुआ? नेक्स्ट जो है सिलेंट्रेट्स, निडेरियंस, और सिर्फ 2 ही में पाए जाते हैं, निडेरिया एंड टीनोफोरा. अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से चालू होता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ऑर्गन लेवल ओनली. और ऑर्गन सिस्टम चालू होता है
एस्केल्मिन से लेकर कॉर्डेटा तक। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, सबके बारे में आपको फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। व्हेन अ डे विल कम आई विल स्टार्ट रिगार्डिंग डाइजेस्ट सिस्टम। बिफोर डीलिंग विथ ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम, जो हमारा उस चैप्टर का मेन जिस्ट है वो तो सब है, बट वी ह्यूमन आर ऑलवेज कंसिडर आवरसेल्फ एज अ सोशल एनिमल एंड प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट ऑर्डर एज अ प्राइमेटा, जैसा कि हमेशा बताया जाता है। तो हमारे अंदर वो सिस्टम, और वो सिस्टम डेडिकेटेड है एक खास उसी एक्टिविटी को करने के लिए जो कि एक प्रोटोजोआ भी करता है, न्यूट्रिशन। कौन सा प्रोसेस? लेकिन बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में करता है, और हम उसको बहुत एडवांस फॉर्म में तरीके से, बेहतर तरीके से करते हैं, एफिशिएंसी के साथ करते हैं, बोलने के ये तरीके हैं। लेकिन क्या प्रोटोजोआ के पास डाइजेस्ट सिस्टम है? नो, डाइजेस्ट सिस्टम आइदर एब्सेंट और प्रेजेंट। इफ प्रेजेंट इट कुड बी फॉल्स और ट्रू। फॉल्स डाइजेस्ट सिस्टम कहां होता है? सिलेंट्रेट्स, पॉरीफेरा में तो होता ही नहीं है, एब्सेंट। फॉल्स होता भी है तो किसमें होता है? सिलेंट्रेट एंड टिनोफोर्स। तो ट्रू डाइजेस्ट सिस्टम चालू होता है प्लेटीहेल्मिन से। कहां से? लेकिन वो भी दो तरह का, इनकम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट। किन में होता है? प्लेटीहेल्मिन्स में। कंप्लीट कहां से चालू होता है? ट्रू एस्केल्मिन्स। कहां तक? कॉर्डेटा तक। लेकिन कंप्लीट मतलब माउथ भी होना और एनस भी होना। लेकिन पहले माउथ बना कि पहले एनस? डाइजेस्टिव सिस्टम इटसेल्फ आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोस्टोमिक, ड्यूटरोस्टोमिक। तो ये सब पढ़ने के लिए कोई अलग से आपको स्पेस जनरेट करके टाइम देने की जरूरत नहीं है। कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करें, पहले से दिमाग को ऐसा ट्रेन और अपने आप को तैयार कर ले कि कैसे हम चीजों को लिंक। कंसेप्चुअल पढ़ाई ऐसी होती है, किसी के बोलने से नहीं होगा। टुडे वी विल डू हाई लेवल, लेवल 3। कंप्यूटर गेम थोड़ी खेल रहे हैं लाइफ के साथ, लेवल 1 लेवल 2 बैठे हैं। पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, चालू हो गया, चालू हो गया, और वो एक दिन एंड हो जाएगा। ये और ये हमारा कोर्स है। अब इसी के दायरे में रह के दिमाग को कैसे तैयार करें कि क्वेश्चन क्रैक हो सके। तो पहले दिन से फॉलो करें। कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मूवमेंट, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस मूवमेंट के पीछे की कहानी यह है कि उसको 3 चीजों की जरूरत है। उनमें से एक है सपोर्ट। क्या है? और वो सपोर्ट सिस्टम ही फ्रेमवर्क क्या कहलाता है? दिस इज द प्राइम फ्रेमवर्क। तो एनिमल किंगडम में हर किसी को चाहिए। खुद खुद पॉरीफेरा के पास भी अपना फ्रेमवर्क है। उनके पास होता है स्पीक्यूल्स। क्या होता है? लेकिन क्या वो एक्चुअल स्केलेटन सिस्टम है? नहीं, वो एक फ्रेमवर्क है। उनका एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने वाला एक नेटवर्क इनऑर्गेनिक कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कांटे जैसे इंटरवोवन स्ट्रक्चर्स है। प्रिमिटिव, ठीक है, वही उनका स्केलेटन सिस्टम। हमें तो किसी भी फिजियोलॉजी के चैप्टर में जिस सिस्टम को भी पढ़ेंगे, उस सिस्टम की खासियत है कि इट इज मेड अप ऑफ असेंबली ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में फिर वही बात आ गई, टिश्यूज, और तब जाके उस लेवल पे जब वो काम करता है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, कुछ फंडामेंटल बातें पता चलेंगी, एंड देन वी विल गो फॉर द histology of hard connective tissue. मैं यहां पर एनिमल टिश्यूज इसलिए लिख रहा हूं कि आप खुद सेल्फ स्टडी करते समय खुद महसूस करें कि चैप्टर पढ़ रहे हैं लेकिन कैसे जंप करके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एनिमल टिश्यूज में, कार्टिलेज बोन्स भी रिवाइज हो गया और सिस्टम तो पढ़ ही लेंगे। सो वी आर डीलिंग विद दी 2 टिश्यू टाइप। अगेन यहां हेडिंग दे रहा हूं मैं, कार्टिलेजेस एंड बोन्स। फाइनली उनसे ही बनता है एवरीथिंग रिगार्डिंग कार्टिलेजेस एंड बोन्स, सब पढ़ा दिया जाएगा। और फिर उनसे असेंबल होके वी विल स्टार्ट रिगार्डिंग, है ना, 1/2 ऑफ द चैप्टर ऑफ द कंप्लीट, क्योंकि इसका पहला हिस्सा है मस्कुलर सिस्टम। क्या है? ह्यूमन स्केलेटन पे बात करेंगे, और उसे हमें 2 हेडिंग्स में डिस्कस कर लेना। द होल चैप्टर इज डिवाइडेड, डेल्ट इन 2 हेड्स। The whole skeleton is anatomically set up in which form? Axial skeletal and
appendicular skeletal. Finally, the topic is going to be end with an peculiar application of the है ना जो arrangement accommodation of the skeleton system जिसे हम कहते हैं joints. And by the end of the chapter, we are going to experience some इतना कुछ ऑर्डर में पढ़ने के बाद उन्हीं में डिस्टर्बेंसेस बाय डिफरेंट एक्वायर्ड मींस यानी वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सम disorders of skeletal system. Now that will be our code of conduct with the topic, है ना, in the upcoming classes. बिल्कुल ऐसा दिमाग में सेट हो जाना चाहिए. So now let us begin an introductory lecture on the event of what we call movement. So to go through it, let us consider, because definitely any life process whatever we discuss is experienced and observed among the living world, members of living world. So living world comprising of some XYZ member. So being dealing with zoology, we will like to choose an animal member from the living world. And as usual ever said, an animal member of living world is also a living being basically. With an inherent ability of exhibiting what we call life, which is an outcome of simply the series of life dwelling processes, biological activities. Now, point to be noted. I took any 4 examples of life processes, what we basically know. Suppose I say nutrition, followed by respiration, followed by circulation and excretion, and there are many more such. डेफिनेटली इन सारी एक्टिविटीज करने के लिए कोई ना कोई डेफिनेट बॉडी में सिस्टम्स मौजूद है. सिस्टम्स उन ऑर्गन्स के बने हैं और वो ऑर्गन्स जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज न्यूट्रिशन के लिए एक डेवलप्ड सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, हमें पढ़ना स्केलेटन सिस्टम है, लेकिन ऐसे तो और भी एक्टिविटी. स्केलेटन सिस्टम पार्टिसिपेट इन विच बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस? मूवमेंट. लेकिन खुद मूवमेंट लिविंग वर्ल्ड में किसी भी लिविंग बीइंग अगर वो एक एनिमल मेंबर है उसके लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है, क्यों उसको एग्जिबिट करना चाहिए? सपोज न्यूट्रिशन है, उसके लिए डाइजेस्ट सिस्टम इन्वॉल्व है. डाइजेस्ट सिस्टम का कोई भी पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल, brings a unique process उस एक्टिविटी को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस. क्या कहते हैं? क्या है पेरिस्टाल्सिस? अभी नहीं पता, भूल जाओ आप. अभी एक घटना वो एक अंजाम देता है एलिमेंट्री कैनाल. दैट इवेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. ठीक है. सिमिलरली रेस्पिरेशन के लिए मौजूद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसका एक हिस्सा है जिसे हम उस पूरे सेटअप को कहते हैं रिब केज. क्या कहते हैं? और वो रिब केज
परफॉर्म करता है ब्रीदिंग मूवमेंट्स। क्या मूव परफॉर्म करता है? सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका एक कंपोनेंट है हार्ट, और वो करता है हार्ट बीट, पंपिंग। पंपिंग वर्ड लिख रहा हूं। सिमिलरली यूरिनरी सिस्टम, और उसका एक कंपोनेंट है यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर, वो पार्टिसिपेट करता है एक्ट ऑफ वॉइडिंग द यूरिन, और जिसे हम कहते हैं मिक्सचुरेशन। इन सारे सिस्टम्स और इन सब का काम करने का नेचर, एम बॉडी के लिए बिल्कुल अलग अलग, लेकिन सारे सिस्टम्स और उनके काम करने के तरीके में एक बात कॉमन है। एवरी सिस्टम इज डिपेंडेंट टू ब्रिंग सम और आइदर वाइटल सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल मूवमेंट्स। मीनिंगफुल मूवमेंट्स, तब जाके वो अपने एक्चुअल एम को अचीव कर पाते हैं। पेरिस्टालसिस होता है, सो कॉल्ड द फूड बोलस स्लरी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ता जाता है और एरियाज को क्रॉस करते हुए एक्चुअल एम गेन कर पाता है, डाइजेस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सबसे पहला स्टेप ले लीजिए, इंजेशन। खाने को हम जिस तरह से इनटेक करते हैं, दैट्स अ फिजिकल एक्ट, एंड फिजिकल एक्ट ब्रॉट बाय व्हाट? मूवमेंट, मैस्टिकेशन, चूइंग, सॉलोइंग। तो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरह के वो मूवमेंट्स करते हैं, ऑल टुगेदर कॉल्ड पेरिस्टालसिस। कहीं वो चर्निंग मूवमेंट कहलाता है, कहीं कुछ कहलाता है, कहीं सॉलोइंग, डीग्लूटेशन कहलाता है, लेकिन है तो वो किसी ना किसी तरह का मूवमेंट। सो व्हाट वाज द कॉमन इवेंट अमंग ऑल, जबकि सब कुछ अलग एक दूसरे से? द वर्ड इज मूवमेंट। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, मूवमेंट को लिटरली डिफाइन करने से पहले, बायोलॉजिकली उस डेफिनेशन पे पहुंचने से पहले, आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल कि फिजिकल वर्ल्ड में जाएं और आसपास कोई भी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन इट इज इन मोशन, है ना, तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, हम कंसेप्ट पे आ रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स यहां इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है? दो फॉर्म में, पुश या पुल। तो ये नॉन लिविंग है, इसलिए वो एक एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंडेंट है, वो खुद नहीं मूव कर सकता, मोशन नहीं कर सकता, एक्सेलरेट नहीं कर सकता। और उसी फिजिकल वर्ल्ड में एक इंसानी शरीर still I am calling it as an object, but that too living। और वो कैसे हमने डिफाइन किया? वो लिविंग बीइंग है, वो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है अंडर द ग्रेविटेशनल एंड अदर फिजिकल फोर्सेस, बल्कि वो उसका एक अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस है ड्यू टू इट्स लिविंग बीइंग नेचर। वो इसलिए कि बाहरी फोर्सेस से भी हम धक्का खा के या किसी और तरह के चीजों से इंफ्लुएंस होके हमारे बॉडी में एक्सेलरेशन आ सकता है, बट आज अब बायोलॉजी जहां शुरू हो रहा है हमारे डिस्कशन में, हम जिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, विच कुडंट बी परफॉर्म, इट इज द मोशन, एंड हियर इट इज द मूवमेंट। व्हाई सो? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय मीनिंगफुल वे में, है ना, अलग अलग तरह के मोशंस, बाय इनहेरेंट फोर्स। विच फोर्स? साइंस का एक घटना साइंस की दूसरी घटना को चैलेंज नहीं करेगा, फोर्स तो यहां भी चाहिए, बस अंतर यह है ये फोर्स आ रहा है अंदर से, एज अ रिजल्ट ऑफ सम मेटाबॉलिज्म, एज अ रिजल्ट ऑफ सम
सीरीज ऑफ सम बायोलॉजिकल रिएक्शंस अंदर है ना, पूरे इंजन्स बने. व्हाट आर दोस बेसिक इंजन्स व्हिच ऑपरेट टू ब्रिंग दैट इनहेरेंट फोर्स? मसल सेल्स. विच सेल्स? उनका पूरा वैसा फिलामेंटस अरेंजमेंट है. दे हैव गॉट दोस माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सच. वो पढ़ेंगे आने वाले दिनों में. वी विल गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ द बायोकेमिस्ट्री ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हाइल explaining and understanding the concept of sliding filament theory. कौन सा थ्योरी? तो उस लेवल तक बात पहुंचने से पहले, और वो सब जिस कारण से होता है, जिस उद्देश्य से होता है, उस एम को पहले डिफाइन करें. टू ब्रिंग अल्टीमेटली व्हाट? आंखों देखा आप शरीर के किसी भी हिस्से में पाते क्या है? अंदर वो हो रहा है. और उसके वजह से नेट रिजल्ट जो फोर्स निकला, उस फोर्स का यूटिलाइजेशन करके एक लिविंग ऑब्जेक्ट क्या अचीव करता है? वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बायोलॉजिकल एबिलिटी कॉल्ड मूवमेंट. मूवमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल एंड फिर उसकी अपनी क्लासिफिकेशन से. ये तो मैं सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल, सही बात है. और तब जाके एक ऑर्गेनिज्म के शरीर में सारे सिस्टम्स अपने काम को अंजाम दे पा रहे होते हैं. तो हमें तो सिर्फ अभी अभी पूरे डिस्कशन में इस मूवमेंट के केवल एक ही पहलू, एक ही एस्पेक्ट के बारे में पता चला है. फोर्स का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इवेंट कॉल्ड फोर्स? तो ध्यान दीजिए, अब मैं प्रेजेंटेशन क्या लिख रहा हूं, है ना. मूवमेंट So actually movement is brought about by a trio action. What is that trio action? It avails the basic requirement inherent force, but force से कुछ नहीं होगा, वो मीनिंगफुल वे में यूज हो. इट नीड सम डायरेक्शन ऑल्सो. और डायरेक्शन तभी मिल पाएगा उसको जब उसको सपोर्ट मिले. क्या मिले? And finally, it needs some control, voluntary and involuntary. Movements are of two types on the basis of control, voluntary and on the basis of position या organs involved, internal and external. On the basis of aim of movement, migration, इमाइग्रेशन, ऐसे करके मतलब सारी बातें. वो तो तब मैं सब ये बताऊंगा और लिख पाऊंगा जब हम मस्कुलर सिस्टम क्या पढ़ेंगे. तो धीरे धीरे आप देखो डिस्कशन कहां से स्टार्ट हुआ, किस मुद्दे पे पहुंचा. आज हमें क्या डील करना है? स्केलेटन सिस्टम. और फाइनली skeleton system is the ultimate setup, is an assembly of a unique specialized tissue type among the tissues, connective tissues, specialized connective tissue. What they are? Hard connective tissue, which are in an animal kingdom among a certain higher complex group of animals only, and those are none other than what we know called chordates. ऐसी बेसिक बातों के साथ हम हमारे मुद्दे पे पहुंच जाएंगे. व्हाट आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी दोबारा लीप करके वापस हमारे ट्रैक पे आएंगे, क्योंकि हम तो डील कर रहे थे हिस्टोलॉजी. क्या डील कर रहे थे? एक स्पेशल टिश्यू जिसके असेंबली से फिर भविष्य में ऑर्गन्स बनेंगे. और वो ऑर्गन्स कोई और नहीं, बोन्स. 206 हड्डियां, एक एक हड्डी का नाम, कहां वो अरेंज है, किसके साथ अरेंज है, मतलब जॉइंट्स. टॉपिक का कंसर्न समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है? ज्यादा तो हम पढ़ते नहीं है, सिर्फ 206 हड्डियां याद करनी है. कितने? हाँ बस, ठीक है ना. हाँ इतना मत इतना भी रिस्पॉन्ड मत करो कि बस. वो तो फिर पता चलेगा कितना बस और कितना कार हो रहा है कि नहीं है. ठीक है, ओके. सो लिख लिया सबने यहां पर? नोट डाउन. So we have completed our introduction.
So let us define now movement. देखिए, it is defined as a change in position of, it is defined as a change in position of a body part in an organism. मूवमेंट हेडिंग देकर इसकी डेफिनेशन लिखे, इट इज बीइंग डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट. It is defined as a change in the position of a body part in an organism. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं, a locomotion is defined as a process of, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखे, locomotion is defined as a process of displacement of whole body. Locomotion is defined as a process of displacement of whole body of an organism from one place to another. Locomotion is defined as a process of displacement of whole body of an organism from one place to another. पैराग्राफ चेंज करके लिखे, इट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट. इट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट. ऐसा लिखने के बाद फिर राइट अ गूगली स्टेटमेंट, all locomotions are movements but all movements are not. All locomotions are a type of movement but all movements are not locomotion. फिर हेडिंग दीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट. हेडिंग देके फिर एक लाइन लिखे, फिर ये पॉइंट्स लिखेंगे. In nature, among animal kingdom, the members perform movement and locomotion. In nature, among animal kingdom, the members perform in nature among animal kingdom, the members perform movement and locomotion due to following needs, और वो needs को पूरा करने के लिए ही मूवमेंट का ये सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है ना. आई रिपीट, इन नेचर among animal kingdom the various members perform movement as well as locomotion, है ना, टू मीट द फॉलोइंग नीड्स. उनके जो नीड्स हैं उसके चलते हुए फॉलोइंग तरह की एक्टिविटीज करते हैं. सबसे पहले टू गैदर द फूड, टू हंट फॉर प्रे, टू प्रिवेंट फ्रॉम predation, to exhibit migration, है ना, सीजनल चेंजेस को सामना ना कर पा के मूव कर जाना. तो दे नीड सम एबिलिटी टू एग्जिबिट माइग्रेशन.
to move for mating, ब्रीडिंग सीजन में अपने ऑपोजिट काउंटर सेक्सुअल पार्टनर से जाके जो है इंटरकोर्स करने के लिए मूव करना, थ्रू आउट द ईयर देयर रिमेन सेपरेटेड। तो ये सारे अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल नीड्स हैं। तो ऐसे करके फिर इंपॉर्टेंट मूवमेंट में अभी अभी मैं जो पढ़ा रहा था वो इंडिविजुअल लेवल पे किसी इंसान किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी सारे इंडिविजुअल फंक्शंस को मीट आउट करने के इंपॉर्टेंट, वो भी लिख सकते हैं। ऐसे करके हम बहुत लिस्ट तैयार कर सकते हैं अलग अलग तरह का। लेकिन एक एवरेज बात करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए कि ऑल ओवर कुछ ऐसी बातें जो पूरे एनिमल किंगडम के हर मेंबर पर लागू होता है, क्योंकि वो अपने हैबिटेट में रह के आए दिन जिन चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस को, उसको रिस्पॉन्ड करना। और उस रिस्पॉन्ड का एक तरीका है, कोई भी एनिमल बॉडी दो ही तरह से तो रिस्पॉन्ड करता है, मूवमेंट एंड सिक्रीशन। मूवमेंट मसल्स के थ्रू और सिक्रीशन ग्लैंड्स के थ्रू। और बॉडी में यही दो स्ट्रक्चर्स है जो इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? बॉडी का कोई भी हिस्सा अपने अंदर या बाहर के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड दो ही तरीके से करता है, बाय सम मूवमेंट या फिर बाय सम सिक्रीशन। आर यू गेटिंग दैट एस्पेक्ट? ठीक है ना? तो मैं कहा ना, हर चीज रिलेटेड है। और ऐसा बोल के कहीं ना कहीं मैंने नर्वस सिस्टम के सिग्निफिकेंस को रख दिया आपके सामने, और ऑलरेडी आप देख ही रहे हो उस मूवमेंट में भी नर्वस सिस्टम का रोल है। लेकिन आज हमारा एम नर्वस सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम के कंट्रीब्यूशन और ऑल ओवर सिग्निफिकेंस से कुछ नहीं मतलब है। हमें तो बेसिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या टॉपिक चल रहा है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, और वो एनिमल किंगडम में कब कैसे कहां आया, क्यों आया, और इसलिए उसका इस्तेमाल एक हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ग्रुप, कॉर्डेटा से बेहतर कौन हो सकता है, उनके शरीर में अलाइक ऑल सिस्टम्स एक सिस्टम ऑफ फ्रेमवर्क बना, एक सिस्टम ऑफ सपोर्ट बना, जिसे हम मेडिकली बायोलॉजिकली कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। क्या कहते हैं? और उसको बनाने के लिए ये जो दो स्ट्रक्चर्स जिन्होंने अपना आकार लिया, अपना फॉर्मेट बनाया, एक हार्ड और प्लायबल टेक्सचर के साथ और दूसरे ने हार्डनेस एंड नॉन प्लायबिलिटी के साथ। नाउ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज कैसे हम एनसीईआरटी पे पहुंच गए फिर। और वो दो सेंटेंस जो अचानक से पूरी बात कार्टिलेज और बोन्स के उस बेसिक टेक्सचर को सामने रख देता है, उसको ही हमें प्रूव करना है। एंड दैट्स द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्टोलॉजिकल स्टडीज। क्योंकि हिस्टोलॉजी शब्द का मतलब ही होता है किसी भी टिश्यू लेवल के स्ट्रक्चर को उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्ट्रक्चरली फंक्शनली समझना। नाउ ठीक है, ये लिस्ट आपने लिखा, एक ऑल ओवर सिग्निफिकेंस समझ में, और वाकई में ये जरूरत है हर एनिमल मेंबर का। और इसके लिए कोई दौड़ेगा, कोई लीप करेगा, कोई हैंगिंग करेगा, सबके पास अलग अलग, कोई स्केंटोरियल, कोई कर्सोरियल, सबके अपने अपने हैबिट्स ऑफ लोकोमोशन एंड यूनिक मूवमेंट से अपने आप को मौके पे एस्केप करने का। आपने कभी एक चीतल या डियर भागते हुए देखा होगा, और उसके पीछे जो है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर चीता उसके पीछे भागता है, 10 अटेम्प्ट करेगा, 7 बार ही सक्सेसफुल होगा। तो 3 बार अनसक्सेसफुल क्यों होता है? क्योंकि प्रे और प्रेडेटर का रिलेशन ही ऐसा है कि इवोल्यूशन में प्रेडेटर ने हंट करना सीखा है अपने बॉडी फीचर्स के साथ, तो प्रे ने भी अपने आप को एस्केप कराना सिखाया होगा। तो 10 बार अटेम्प्ट हुआ कि एक चीता जो है एक डियर का पीछा करता है, अडल्ट डियर हो या उसका यंग वन हो, जो भी हो, बहुत तेजी से भागता है। और जितना तेज शिकार भागे, जो शिकारी भागेगा, उससे 2 फोल्ड किसको भागना पड़ेगा? शिकार को, है ना? अरे आ रहा है समझ में? पुलिस से ज्यादा फिट किसको होना चाहिए? चोर को। नाउ दिस इज द रिलेशन, मतलब ये है, दिस इज द नेचुरल रूल, एंड देयर द हंट बिगिंस एंड द फाइट बिगिंस। कंपटीशन कहते हैं उसको हम थोड़े सभ्य भाषा में, है ना, कंपटीशन। बट हिडन अनहिडन वे में कंपटीशन तो सबके बीच है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन। ये जो लिस्ट आपने अभी अभी लिखा, मैं अपने उस मुद्दे पे आता हूं कि जिस बचने बचाने की बात कही है कि एक तरफ तो फूड गैदर नॉर्मली ग्रेजिंग करते हुए, अपना खाना इकट्ठा करते हुए, कलेक्ट करते हुए, इवन हनी बी ऑल्सो कलेक्ट देयर फूड बाय स्वार्मिंग, मूविंग, यस और नो, फ्लाइंग, गैदरिंग वो भी है। अलग से मैंने हंट इसलिए मेंशन किया कि एक भाग रहा है अपने खाने की तलाश में, है ना। हर सुबह एक शेर जागता है कि आज मुझे बहुत तेज भागना है,
ये तो भूखा मर जाऊंगा। और हर सुबह उसी दिन एक हिरन जागता है कि आज भी मुझे तेज भागना है, नहीं तो मारा जाऊंगा। अरे कुछ आया समझ में? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो दिस इज द बेसिक नीड। मतलब वाई मूवमेंट का सिर्फ उस पहलू को ना देखे कि एक सिस्टम काम कर रहा है, मूव कर रहा है, हो गया। देयर आर मेनी सच एस्पेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट इन नेचर जो आंखों दिखा। ये तो एक इंडिविजुअल शरीर में हो रहा है। मैं आपसे इतने देर से बात कर रहा हूं, आप इधर मेरे को सुन रहे हैं, बट आपको इनवॉलेंटरली एहसास नहीं है कि कितने बार आपने पलक झपका लिया। वो भी तो एक मूवमेंट है, ब्लिंकिंग। सांस ले रहे, ऐसा थोड़ी कि सर 5 मिनट्स सब ऐसे ऐसे सब रामदेव बाबा बन जाते हैं, मतलब फिर हाँ सर अब बोलो। इट इज गोइंग ना, वो तो अंदर चल रहा है। हार्ट बीट पकड़ के देख लो जिंदा हो कि नहीं। अरे कुछ आया समझ में? मतलब वो तो चल रहा है। दोज आर ऑल्सो मूवमेंट्स। सो कंक्लूडेड, नीचे लिखे पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखे। The above mentioned significance reveals the above significances reveals that movement brought about by a living organism in animal kingdom. The above mentioned significances reveals that movement brought about by a living organism in animal kingdom should be necessarily meaningful. Should be necessarily meaningful. मतलब इसको ऐसे समझे, मतलब जरा जरा छोटी छोटी सी बातें हैं, हालांकि इट साउंड्स ऑकवर्ड। मैं अभी जो एग्जांपल आपके सामने कोट करने जा रहा हूं, बोले सर कोई इतना बेवकूफ थोड़ी होगा, लेकिन बात को समझे। मैं मीनिंगफुल की बात क्या कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है ना, यही तो डिसऑर्डर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम एक ऑर्थोडॉक्स जजफुल एक्टिविटी जो पढ़ रहे हैं। आप क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने गए और सामने वाला ट्रेनर कह रहा है कि जब बॉल आपकी तरफ आए आप जंप करें, लीप करें, है ना। बॉल आया, आप इधर जंप कर गए। बोले सर आप ही तो कहा था जंप करने के लिए, कर दिया मैंने। अरे इट शुड बी मीनिंगफुल इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, जिस परफॉर्मेंस में आप पार्टिसिपेट हो रहे हो। सीधी मतलब डायरेक्शन, क्या आ रहा है वर्ड, है ना। तुम्हें लगेगा कि अरे ये क्या बेवकूफ बना है, वो तो अंडरस्टूड है, उसी की तरफ झाकेंगे। ये तो वही कह रहा हूं, तुम ऑर्डर में हो इसलिए ऐसा समझ रहे हो। डिसऑर्डर्स भी होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे यस और नो? अरे मेरी बात आ रही है समझ में? मीनिंगफुल डांस करते हैं तो वो तो सबका अपना अपना स्टाइल ऑफ डांस है, वो तो कैसे भी कर लो, वो भी डांस है। अरे यस और नो? लेकिन इफ टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म परफेक्ट विद सम ट्यूनिंग, तो यू परफॉर्म सम एक्ट with body synchronization and that is there. लेकिन there are many such peoples, अब बॉडी में शैकिंग पैल्सी डिसऑर्डर है ना, हंटिंगटन कोरिया डांसिंग सिंड्रोम। 30 के बाद जिसको भी होगा ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, पता चला जिसको है वो कर रहा है, और तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो। सबसे पहली बात, तुम्हें नहीं पता कि ऐसा कुछ होता है। अचानक तुम कहोगे अरे देख देख वो डांस क्यों कर रहा है, जबकि वो दिन भर ही ऐसे उसका शरीर हिलता रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो मीनिंगफुल मूवमेंट नहीं है, दैट इज डिसऑर्डर, दैट इज। And what is order? कि whenever a living being under state of control conscious perform any movement, it should be definitely meaningful, necessarily meaningful। यहां तक सबने लिखा है ना। Hence it must be, hence it must be anticipated by, मतलब उसका साथ कौन देना चाहिए? It hence it must be anticipated by some direction, some direction provided by support, provided by support, anticipated by direction provided by some support। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं thus in animal kingdom, thus in animal kingdom a system of framework come into existence, thus in animal kingdom a system of framework come into existence called skeletal system।
a system of framework come into existence called skeletal system. तो अब आप सब हेडिंग दे सकते हैं नेक्स्ट सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंगली. स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम. लिखे थ्रूआउट एनिमल किंगडम ट्रू लिविंग एंडोस्केलेटन. थ्रूआउट द एनिमल किंगडम ट्रू लिविंग endoskeleton evolved among throughout the animal kingdom. The true living endoskeleton evolved among group vertebrates of Chordata phylum. Evolved among group vertebrates in chordates of animal kingdom. Chordates खुद दो तरह के होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेट्स. और यूकॉर्डेट्स को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स. तो दिस इज अ फैक्ट्स बेसिस स्टेटमेंट कि जिस स्केलेटन सिस्टम को हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं सीधा मुद्दे पे आ गया. हालांकि मैं एक लिस्ट लिखवाऊंगा पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक. उन सब में फिर क्या है? क्या उनमें स्केलेटन सिस्टम नहीं है, लेकिन दे आर फॉल्स इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग टाइप नोन बाय डिफरेंट नेम. किसी में ऑसिकल, किसी में स्पिक्यूल्स, किसी में शेल, किसी में काइटिन एक्सोस्केलेटन एंड सो ऑन. और बाकी किसी में तो हाइड्रोलिक स्केलेटन क्या पाया जाता है. तो क्या है वो सब देखेंगे. मैं वो कह रहा हूं ना, सब कुछ टेक्सोनॉमी में मोर और लेस है, लेकिन वहां उनके बारे में नहीं बताया जाता है. बस ऐसा है, ये एक फीचर है, टेक्सोनॉमिक फीचर है, फलाने फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स. पढ़ाई वैसा जाता है. और कंपेरेबल स्टडी, कैसा स्टडी? रीजनिंग नहीं करते, सीधा कंपैरिजन. फलाने लोअर फाइलम में ऐसा था, यही काम इस फाइलम में ये करता है, एंड इट इज करेक्ट. फलाना इज ऑल्सो करेक्ट. अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड. क्वेश्चन पैटर्न्स भी ऐसे बनते हैं. और डे विल कम जब हम टेक्सोनॉमी पे होंगे, वहां मुझे एक तरह से आपको मेस्मराइज करके मगअप कराना, याद कराना है. रीजनिंग तो हम आज देख रहे हैं कि क्यों और कैसे कोई भी चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरे एनिमल किंगडम में उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन और सिनेरियो है. हालांकि हमें तो फिर पढ़ना ही है सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंगली ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन, रेस्ट ऑफ द एलाइड फीचर्स जो हम आगे देखेंगे. लेकिन एवरी टाइम सेम question, same strategy of learning. Before going to the details and the complete physiological action of falana system in human body, the question arise, हमारे ancestors, हमारे lower forms, हम जिस बड़े largest kingdom के member हैं, topmost position पे, हमसे पहले बाकी सब में वो कैसे आया, किस तरह से आया, उस रीजनिंग को हम पहले एक्सपीरियंस करेंगे. और अगर आप जाके थोड़ा सिंसियरली एनसीईआरटी फॉलो करोगे, हर सिस्टम में देखिएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ इसी बात पे डिस्कस्ड है कि ये सिस्टम एनिमल किंगडम के लोअर एनिमल फॉर्म्स में ऐसे ऐसे ऐसे. जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का आज ही जाके बुक देखो आप और पढ़ के तो देखो, एक पैराग्राफ में लिखा ही है इन लोअर एनिमल्स, प्रोटोजोआ से लेकर जो है, किसी में रेन्नेट सेल है, किसी में फलाना नेफ्रीडिया है, किसी में कॉक्सल ग्लैंड है. तो एनसीईआरटी में तो यही किया गया, एक टेक्सोनॉमिक टच दिया पहले, और सारी चीजें एश्योर करने के बाद नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन और उसका सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम ह्यूमन बींग्स यानी मैमल्स में वो कैसे मौजूद है. एंड इट इज नन अनदर देन यूरिनरी सिस्टम मेड अप ऑफ प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अ पेयर ऑफ किडनी. अब वो किडनी हम लोग में कैसा है, उसकी हिस्टोलॉजी कैसी है, वो कैसे काम करता है, और उसने काम तो कर दिया, लेकिन उसको फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, वो उसको सिर्फ कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं. एंड रेस्ट ऑफ द अदर पॉइंट्स, अदर एसोसिएटेड बातें, वही डिसऑर्डर्स क्या है,
हीमोडायलिसिस क्या होता है, किडनी फेल हो गया तो क्या करेंगे. नाउ दीज आर दी क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर. पूरे चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया, कुछ नहीं आया, सिर्फ वो आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस का कोई कंसर्ट वाला क्वेश्चन आ गया. कुछ भी हो सकता है, ये तो कंपटीशन है. सबको आ रही मेरी बात समझ में? तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि आप मतलब उस चीज को तैयार रहो. आप बिल्कुल हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहिए कि पढ़ लेंगे सब कुछ, लेकिन यू शुड बी एबल टू पिक अप. बहुत कुछ पढ़ेंगे लेकिन उनमें से लिंक करके फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस पॉइंट को पिकअप करना आना चाहिए. ये सब आप सीखने के लिए क्लास में आते हो. तो ये सब तो है, ये तो हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको एकदम बेसिक से ऐसा है ये सब पढ़ा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ सब पिकअप करना आना चाहिए. ओके तो अभी अभी मैंने जिस मीनिंगफुल मूवमेंट और कहा स्केलेटल सिस्टम को डिफाइन किया, और अभी अभी आपके सामने ये फैक्ट आया कि it has for the first time begun to evolve among a special group vertebrates, true chordates. उसका कारण क्या है, बाकी सब में क्यों नहीं होता? पैराग्राफ चेंज करके लिखो. इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन a mesodermally origin rod like structure developed. इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मतलब जो समय के साथ इवोल्यूशन हुआ, तो इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन a mesodermally origin rod like structure developed among higher complex organisms in animal. In course of evolution, a mesodermally rod like structure developed among higher complex members of animals known as notochord. known as, अंडरलाइन करे रेड पेन से नोटोकॉर्ड को. In course of evolution, a mesodermally rod-like structure for the first time evolved among higher complex members of animals known as, उसको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? नोटोकॉर्ड. अंडरलाइन करें, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, इट इज अ प्रिमिटिव, इट इज अ वेरी प्रिमिटिव हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. It is a primitive hard connective tissue. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखें, दिस स्ट्रक्चर हैज फॉलोइंग 3 डेस्टिनी. ठीक है, बना, लेकिन आगे चल के 3 कंडीशंस अराइज हुए, मतलब ये स्ट्रक्चर का 3 भविष्य बनता है. द above given structure notochord has following 3 destiny. बात यहीं खत्म नहीं हो गई, उसमें भी फिर 3 वैरायटी हो गए, 3 कंडीशंस. नियम तो ये कहता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, द होल एनिमल किंगडम ऑन द प्रेजेंस ऑफ एन एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. ये है कि नहीं? और जैसा मैंने लिखवाया वो तो अंडरस्टूड है, सिर्फ हायर मेंबर्स, लोअर मेंबर्स में तो ऐसा बना ही नहीं था. तो एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड, यानी अचानक से एक फ्लैश ब्लैक में आपको सबकॉन्शियस माइंड में बात घर कर जाना चाहिए कि ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स. आर ये मेरी बात समझ में? ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड नहीं था, और यही वो स्ट्रक्चर है जिसको एज पर रूल ऑफ इवोल्यूशन और इसके डेस्टिनी जो तय हुआ था कि ये आगे चल के ट्रांसफॉर्म होके बनाएगा बॉडी का बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम. और वर्टिब्रल कॉलम का बनना ही इस बात का साइन और सिग्नल है कि इवोल्यूशन में नेचर ने हायर ऑर्गेनिज्म को क्या दिया? शरीर को ढांचा, फ्रेमवर्क बनने की शुरुआत दी. क्यों? क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म का शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स, इतने सारे सिस्टम्स, उनको अंदर प्लेसमेंट चाहिए, एकोमोडेशन चाहिए, और उन इतने सारे सिस्टम्स को लेके शरीर जिस एनवायरनमेंट में रिसाइड करेगा, सरवाइव करेगा, तो बॉडी नीड्स वेल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट. फिर से वही सपोर्ट वाली बात है. तो पॉइंट टू बी नोटेड, जिनमें ये आया और बना और बनकर ट्रांसफॉर्म हुआ, वो बन गए सही मायने में कॉर्डेट्स. क्या बन गए? और जिनमें आया नहीं, बात ही खत्म. नो स्केलेटन सिस्टम, नो
Which skeleton system? True living skeleton system absent. उनके स्केलेटन सिस्टम होते हैं. अब जैसे मोलस्का के शेल है, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट के जस्ट कवर है, रोज है ना एक्सचेंज चेंज करते हैं फिर बना लेते हैं. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आ रही मेरी बात समझ में? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी फंडामेंटल बातें. और अभी अभी आपने ऐसा लिखा कि 3 डेस्टिनी होते हैं इस नोटोकॉर्ड का. व्हाट दे आर? द 3 डेस्टिनी आर नोटोकॉर्ड रिमेन एज सच. शरीर में जो भी है, जिसमें भी बना, उसके शरीर में नोटोकॉर्ड ही रह गया जीवन भर उसके शरीर में, मतलब वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ. या फिर नोटोकॉर्ड डिसअपियर, गायब ही हो गया. बना, एम्ब्रियोनिक कैरेक्टरिस्टिक है, बना, और एक लाइफ के स्पैन को क्रॉस करने के बाद यंग से जैसे ही लार्वा से अडल्ट बनने गए, गायब हो गया. नोटोकॉर्ड ही गायब हो गया. या फिर द थर्ड डेस्टिनी जो एक्चुअल फीचर है, नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म इनटू वर्टिब्रल कॉलम. ऐसे कॉर्डेटा मेंबर जो शुरू के 2 फीचर शो करते हैं, उन्हीं कहते हैं प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, प्रोटो. और आखिरी स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले हैं ट्रू कॉर्डेट्स, यानी जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? वो तो मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा आगे चल के, लेकिन आज मतलब फंडामेंटल्स. तो कमिंग बैक टू दी स्टेटमेंट, अभी अभी थोड़ी देर पहले तो लिखवाया, स्केलेटन सिस्टम इन एनिमल किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम अराइज्ड, इवॉल्व्ड अमंग अ ग्रुप. विच ग्रुप? वर्टिब्रेट मेंबर्स, यूकॉर्डेट मेंबर्स. इन कॉर्डेटा तो तीनों ही है, क्योंकि सब में नोटोकॉर्ड था. लेकिन नोटोकॉर्ड बनने के बाद उसके आगे क्या, भविष्य क्या? व्हाट इज द डेस्टिनी? 3 डेस्टिनी. किसी में नोटोकॉर्ड ही रह गया, किसी में नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो गया, और ट्रांसफॉर्म. ये जिसमें होगा, यही तो शुरुआत है स्केलेटल सिस्टम बनने का. क्या बनने का? और स्केलेटल सिस्टम बनने के लिए वही नोटोकॉर्ड आगे चल के 2 तरह के हार्ड, एक्चुअल ट्रू हार्ड कनेक्टिव टिश्यू के टेक्सचर में कन्वर्ट होते हैं. पहले बनता है कार्टिलेज, और फिर कार्टिलेज के ही ऑसिफिकेशन से बनता है बोन. लेकिन एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल मेंबर जिनमें ये सब है, वो बर्थ लेने के बाद उसके शरीर में, एक अडल्ट बॉडी में, बोन्स ज्यादा रह जाते हैं, कार्टिलेजेस फ्यू. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस. अब वो फ्यू कार्टिलेजेस कौन? वो आपको मैंने टेबल बनाते हुए समझाया था. कार्टिलेजेस आर ऑफ 3 टाइप्स इन ह्यूमन बॉडी: हायालिन, इलास्टिक, फाइब्रस. आ रहा है सबको समझ में? तो वी विल रीच अप टू दैट सीक्वेंस. लेकिन आज आपको समझ में आ गया कि चैप्टर को कैसे हमने स्टार्टअप दिया एंड हाउ वी हैव कंडक्टेड टिल डेट. यहां तक सबको क्लियर है ना? तो इसके आगे से मैं कल के क्लास में कंटिन्यू करूंगा. कल कार्टिलेजेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसमें थोड़ा 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन बचा है. एंड देन वी विल पीप इनटू हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट कैटेगरी कार्टिलेज, 3 तरह के विद एग्जांपल्स कवर. और सैटरडे को सारे बोन्स क्या पढ़ चुके होंगे, यानी नेक्स्ट वीक मंडे शेड्यूल में मेरी क्लास रही तो ह्यूमन स्केलेटन क्या पढ़ चुके होंगे. उसमें भी एक्सियल में सिर्फ स्कल. एक दिन तो सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा, स्कल. और एक दिन में बाकी सारे एक्सियल खत्म हो जाएंगे, और फिर एक दिन में सारे अपेंडिकुलर, एक सीक्वेंस में. ठीक है ना? और जैसे बता दूंगा बस उतना ही याद करना है, उसी में से क्वेश्चन आएगा. मेन है आपको याद होना चाहिए, सीक्वेंस मेंटेन रहना चाहिए, फिर क्वेश्चंस देखा जाता है. क्लियर?